चलो कोई नहीं, आप लोग ने ज्वाइन किया तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? किसने रिसर्च किया आप लोगों ने कुछ भी? अमन, Yes, यू देयर? yes, sir. या अच्छा, सो हैव यू डन एनी रिसर्च? Yes, yes, sir. ओके, सो I'll just share my screen. या, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय EMR फर्स्ट? So, actually, this was the same project I was working in my internship as well. या, So, ओके, so it's just electronic medical record system, like the राइट, patient's medical history, whatever, all the reports, lab reports, which are important enough. So, storing them all in one place so that hospitals and even the patients they can both have access to it. वंडरफुल। सो So, hospitals, there is a EHR system as well, but that is या, different from EMR. So EHR is for a complete holistic data for all the patients that are in the hospital, but EMR is specific to one patient. Like it is only for patients and doctors, not to like take out any data from it and predict something. wonderful. So I think like what you should do is like you should focus both on EMR and EHR and try to bring about something in the middle. I mean, using technology, using AI, Yes, predictive sir. analysis, those kind of things. So you should work on this and try to one basically, yes, managing the medical records of all the patients. Along with that, also other things. For example, let's say I am someone like who's originally from India, and let's say Mm. I have my history and everything, right? About because most of the time since I've spent in India, so मेरी history सारी इंडिया में ही रहेगी, right? पुरानी जितनी भी Yes, है। sir. एंड उसके बाद मैं मूव कर गया कहीं और। सो जब मूव कर गया कहीं और तो वो जो पुरानी हिस्ट्री है, सो दैट the doctor in the new country, I mean, they should also be able to access that, right? Yes, So yes. how can that be done? And along with that, how can you use data of let's say, yes, so let's say जैसे मैं दिल्ली से हूँ, right? So दिल्ली का डेटा जो है, जैसे दिल्ली में pollution है, right? And there are Yes, sir. other data and medical issues and all those things like region specific, geographic specific भी होते हैं, करेक्ट? Yes, sir. तो उसको यूज़ करके, उस डेटा को यूज़ करके, उसके बाद मैं नई कंट्री में आया, उस डेटा को यूज़ करके, एआई को, मशीन लर्निंग किसी तरह से यूज़ करके हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकें कि इन फ्यूचर you might face this problem, and not just by using his personal data but also using the data of, let's say, his parents, his brothers, sisters, his relatives, Yes, sir. समझ रहे हो? तो इस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि हम वन, सबसे पहली पहली चीज़, सिंपल चीज़ है कि सब कुछ मेडिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो, डिजिटल फॉर्मेट में हो, दैट्स वन थिंग। उसके बाद में जो भी रिकॉर्ड्स है या रिकॉर्ड्स है वो बेसिकली उसको कैसे यूज़ कर सकें, राइट? अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर पीपल इन द ज्योग्राफी Yes, sir. to predict and maybe recommend and guide the user that yes, you should avoid these things if you want to live for a longer period of time, or if you want to stay healthy, or you should take these precautions because there are chances that yes, you might get this problem in the future. तो समझ रहे हो पूरा डेटा साइंस? Yes, yes. सो आई मीन उसको बनाना है आपने फिर। सो मैंने ईएमआर लिखा, बट यस, ईएमआर प्लस ईएचआर, आई मीन लाइक लेट्स कंबाइन दैट एंड मेक समथिंग आउटस्टैंडिंग। सो द थिंग इज दैट even if we cover very basic, okay, in this product, in this solution, but we should not try and copy other products, okay? So the idea here is that yes, we should learn from the existing products, but we should have our own unique USP, So okay? actually, जो रिसर्च आई डिड उसमें Yeah. फाउंड आउट कि जो अभी प्रेजेंट ईएमआर सिस्टम्स हैं तो मैंने टॉप 5 देखे थे वर्ल्ड के. सो Hmm. दे यूजुअली यूएस की. तो देयर इज ओनली वन थिंग दैट डिफरेंट लाइक दैट इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज उनके बीच में देयर इज नो इंटरकनेक्टिविटी बिकॉज डिफरेंट Hmm. हॉस्पिटल्स यूज डिफरेंट ईएमआर सिस्टम्स. Right, right. So if they want to like share medical records between each other because the patient will not go and upload again and again. Perfect. Yes. So that is not there. So So that cool. is So the now difference. let's try to build system around that then. I Okay, mean, okay. see, rebuilding everything from scratch, I mean, doesn't make sense if there are existing players who are already in the market and doing good. So, Yeah. I mean, like, working with them won't make sense, right? So, how can we take them along, yet build something different, ताकि हम उनके लिए relevant रहें? All right.
Okay, like we'll have to brainstorm a lot on this before actually building something. Okay, and इसके लिए मैं आप सब लोगों से अकेले के लिए भी बात करूंगा. अभी now the thing is that I'm doing this together because I want the other people to also to understand कि EMR होता क्या है, right? जैसे मैंने और भी बाकी सब चीज़ें डाली है कि लाइक कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, सो समझने में तो बहुत ईजी है, बट इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? There's a different kind of solution that you'll have to develop, right? खाली वो ट्रैफिक मैनेज करना, कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है. I mean, like you can do that using Google Map also, or maybe like by using some other tools. But how to use data, how to use, or basically predictive analysis कैसे कर सकें by using the existing data and also basis the history, past data. Fine. So ठीक है, तो you know like what you're supposed to do, right? I mean like आपको कोई problem नहीं है, you have clarity. अमन? No, sir. No, sir. Yeah, perfect. ठीक है. So let's see और कौन-कौन है अभी? Sir, adding on to Aman's EMR system problem, Yeah. so India is also working on Ayushman Bharat scheme. So if you can read about that. I read about that. So, but it's still in progress. It's not yet established, I think. Yeah, it's in pilot launch. Yeah. Yeah, I mean, like the more you research, the better it is, right? So just don't, restrict yourself to US, India, but also read about like what other players are doing, or basically, who are the other players in different countries? Maybe like Singapore, maybe like Canada, US, UK. Okay, so other countries like वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं? So I think the more you research, the more insights you'll get, and that is what will help you build a better product. Okay? ठीक है मन? Yes, sir. ठीक है. अब आ गया नेक्स्ट चांस, हिमांशु. आपका नंबर आ गया हिमांशु. कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कुछ होगी ना, लाइक कि क्या समझते हो? Yes sir, so like मैं ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम पे मैंने तो बस ऐसे हिंट अप किया था. इनिशियली जो गूगल वाला आइडिया था, बट इट वाज लाइक जब गूगल ऑलरेडी कर रहा है तो देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट एंड ऑल. सो आई प्लान्ड ऑन, अभी रिसर्च में काफी लाइक मैंने कुछ नहीं देखा है, ठीक है, काफी चीजें अजीब है. ठीक है. तो अदर पीपल लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट कि इस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सॉल्यूशन या सिस्टम में क्या हम कर सकते हैं, व्हाट ऑल कैन वी इंट्रोड्यूस एंड हैव और इंक्लूड इन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, अब सबसे पहली चीज़ है कि ये हमें समझना है कि लाइक हमारे पर्सनस कौन होंगे, हमारे यूजर्स कौन होंगे. हमें लाइक हू विल यूज द प्रोडक्ट, राइट? तो इसमें एज एन इंडिविजुअल मेरे पास गूगल है, तो व्हाई वुड आई यूज एनी अदर ऐप? चेक की बिजनेस कर सकता है इसको. आई मीन आई डोंट नो, लाइक हो सकता है कि बिजनेस यूज कर सकते, बट व्हाट आई सी इज दैट यस, ये अगर गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर इसको हम यूज करें या रीजन लेवल पे यूज करें, आई थिंक देन इट मेक सेंस, राइट? सो व्हाट आई थिंक इज, जैसे मान लो इंडिया, दिल्ली ले लेते हैं, चलो दिल्ली एनसीआर ले लेते हैं. ठीक है, अब दिल्ली एनसीआर में हमेशा ट्रैफिक रहता है, या बॉम्बे ले लो, कहीं और ले लो, बैंगलोर ले लो. तो अब यहाँ पे ट्रैफिक होता है हमेशा, राइट? अब जो अथॉरिटीज है, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या फिर अदर डिपार्टमेंट्स है, फॉर देम फिगरिंग आउट कि लाइक कि ट्रैफिक हुआ क्यों, दैट्स वन थिंग. उसके बाद में ये भी करना कि अच्छा ये ट्रैफिक जो है ये इस टाइम पे होता है, 6 से 7 बजे होता है, या 7 से लेके 10 बजे तक होता है, राइट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड उसके बाद में उसको लाइक सॉल्विंग दैट थ्रू सम अदर मीन्स, बाय मे बी लाइक गिविंग देम और शोइंग देम मे बी लाइक alternative route or something. So here one thing is that yes, at the top level जो स्टेट अथॉरिटीज है या फिर एजेंसीज हैं, राइट? सो वो इस सॉल्यूशन को यूज करके वन इज बेसिकली मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैफिक, करेक्ट? उसके बाद में अब ट्रैफिक के बहुत सारे कारण से होती है. वन इज लाइक कि एक्सीडेंट हो गया, दूसरा है कि कुछ और प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, राइट? थर्ड कुड बी मे बी कोई इवेंट हो रहा है, लोकल इवेंट, करेक्ट? सो अथॉरिटीज सबसे पहले तो है कि मॉनिटर कर सके कि ट्रैफिक कहाँ पे है, उसके बाद में एनालाइज कर सके कि अच्छा ये इवेंट होने वाला है, इस इवेंट होगा अगर यहाँ पे तो इससे ये प्रॉब्लम होगी, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय मे बी लाइक जैसे मैंने पहले बोला कि ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करके. तो ये चीज हो गया. तो इसके व्हाट आई सी इज लाइक यस देयर कैन बी टू काइंड ऑफ टू यूजर्स. वन इज द स्टेट लेवल, द एजेंसी लेवल, एंड द अदर कुड बी लाइक द एंड यूजर्स, जिसमें कि हम एंड यूजर्स को हम ये
इस सिस्टम के थ्रू बोल सकें कि लाइक यस, ये जो आज है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इस जगह पे ट्रैफिक होने की उम्मीद है, राइट? सो आई मीन लाइक यू शुड टेक सम अल्टरनेटिव कोर्स, नॉट द सेम रूट। उसके अलावा व्हाट आई सी इज दैट यस, कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में जैसे कुछ सिस्टम ऐसा हो, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, राइट? तो वैसे ही किसी तरह से नोटिफाई हो कि हाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, और वो पूरा का पूरा फिर मेडिकल जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है, मेडिकल सेंटर है, उसको नोटिफिकेशन चला जाए। दैट्स वन सिंपल एडिशनल यूज केस दैट आई एम ट्राइंग टू ऐड हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक के साथ में आई डोंट नो इफ वी कैन यूज पार्किंग सिस्टम इसके साथ में, कि मैंने ट्रैफिक सो बेसिकली जो एजेंसीज है वो ट्रैफिक को यूज करेगी, और जो यूजर है वो बेसिकली उस पे जो अपडेट्स आ रहे हैं ट्रैफिक सिस्टम से उसको वो यूज कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट दे कैन आल्सो यूज द पार्किंग, और दे कैन फाइंड पार्किंग स्पॉट्स इन द रीजन। So I think there's like logistics business can also use traffic management system. Like it is a big use case for them. Yeah, see one more use case. So thing is that think broad, okay? I mean जब हम आइडिएट कर रहे हैं तो जो मन में आता है, समझ नहीं भी लगता है कि इट्स नॉट रेलेवेंट, स्टिल यू शुड ऐड इन योर जो रफ डेटा डॉक्यूमेंट जो मैंने उस दिन बना के दिखाया था आप लोग को, उसमें जो दिमाग में आता है डालते जो रेलेवेंट है नहीं है, मतलब at least you should document that, you should put that in some format somewhere, okay, as a note. So traffic yeah, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोटोकॉल हो, एंड जब भी हम कहीं जाना स्टार्ट करें, एंड एक स्टार्टिंग लोकेशन एक एंडिंग लोकेशन हम डालें अपना कि हमें यहाँ जाना है। अगर इस तरीके से ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अगर करेंगे, मतलब अगर प्रोटोकॉल ही हो कि ये हमें डालना है, तो एआई से वो मतलब कर सकता है, मेजर कर सकता है कि ट्रैफिक इतना होगा या इतने टाइम पे, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको बताता भी रहेगा कि इस टाइम पे ये होने वाला है, या पॉसिबिलिटी है आप पहले स्टॉप कर जाओ, या फिर कुछ भी इंटरनेट रूट दे देगा। मतलब बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं अगर हमारे पास ये हो। परफेक्ट है, दिस इज लाइक यूजर एंड, राइट? ये यूजर एंड है। अब यही जो है एजेंसी लेवल है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, राइट? किसी सिटी का ट्रैफिक जो एजेंसी है जो ट्रैफिक मॉनिटर करती है, अब वो इसको कैसे यूज करेगी? अब जैसे अमन ने बोला लॉजिस्टिक कंपनीज है, वो उसको कैसे यूज करेगी, राइट? सो नाउ व्हाट वी सी इज लाइक कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सोनास आर इवॉल्विंग, यू नो। दिस इज आवर डिस्कशन। वन है कि एजेंसी, द अदर इज लाइक सम कंपनी जिसको कि ये सॉल्यूशन आउटसोर्स कर सकें, जो कि जिसके बेसिस पे वो सारा कैलकुलेट कर पाएं कि अच्छा हमें जो अपना माल इधर से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी भेजना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द मॉर्निंग लेट्स से 10 AM, I mean they should move around let's say 11 to 4 because उस समय ट्रैफिक कम होता है, सो उनका पेट्रोल भी कम लगेगा, वो जल्दी से अपना काम भी खत्म कर पाएंगे। सो ये एक अलग बिजनेस केस निकल गया इसमें से। तो नाउ आई मीन लाइक यस अंशु, आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ओके? And so one product I was reading, what they did was they like Google Maps is totally doing a different job and it's solving everyone's need. So they didn't want to get in that competition. So what they did was, supposedly I want to go to some place destination, let's say Chandigarh. So and Google Maps will tell me the direct route. But what they did was that they added a feature of show me the location route, like picture perfect route, जहाँ पे मेरे को बहुत सारे ट्रैवलिंग स्पॉट्स एंड फोटोग्राफी स्पॉट्स मिल जाए। सो उन लोगों ने वो केस सॉल्व कर दिया था। Got it. So that's again like good point, but that is from the user point of view. ठीक है? So when you're creating this solution for the users, then yes you can add all these things, okay? But हमेशा याद रखो like कि complex सब होता है जब हम business to business product बनाते हैं। So I mean like your 80% or 70% focus should be on building B2B product, okay, for the agencies, for the just logistic companies, those kind of thing, and then 20-25% on the user end. But creating solution for businesses, I mean that's very challenging, and that is where I think you should focus more on. And so it's like directly like going against some Google's product. See, I mean अपना app install करवाना, basically telling the user to or making the user to install your app, that will be a challenging task. So वो वैल्यू मिलनी चाहिए। अब अगर वही चीज अगर गूगल कर रहा है, तो एक यूजर जो है एक एडिशनल ऐप क्यों इंस्टॉल करे? गिव देम इनफ रीजंस फॉर देम टू इंस्टॉल द न्यू ऐप, राइट? सो वो रीजन क्या है? तो उसी को बोलते हैं हम यूएसपी,
तो वो यूएसपी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगेन ट्राई टू फोकस मोर ऑन द एजेंसी वाला सॉल्यूशन, कि एजेंसी कैसे यूज करेगी, कंपनीज कैसे यूज करेंगी दोज बिजनेस यूज केसेस। एंड सर Fine. जैसे जोमेटो और उबर भी यूज करते हैं, जोमेटो उबर स्विगी, ये सब भी गूगल का एपीआई यूज करते हैं। सब एपीआई यूज करते हैं, यस। यस। या क्योंकि सॉल्यूशन बिल्ड है ना, आप स्क्रैच से बिल्ड करोगे तो थिंक अबाउट लाइक हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू हैव टू पुट, और लोग कितने चाहिए होंगे मेंटेन करने के लिए, राइट। सो नाउ बाय जस्ट यूजिंग गूगल आपको बेसिक जो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नहीं सोचना है, खाली कस्टमाइजेशन के बारे में सोचना है आपको। ओके, Because सो you- लाइक अगर हम ओवरऑल डेटा लॉजिक सब कुछ देखते हैं तो देन वील बी आल्सो टेकिंग डेटा फ्रॉम गूगल एंड ऑल, या फिर कैसे करना है, फिर खुद के सिस्टम्स पे फोकस करना है? नहीं नहीं नहीं, आई मीन आपने सॉल्यूशन बनाना है बैकग्राउंड में, जैसे गूगल मैप यूज हो रहा है तो आपने गूगल मैप यूज करना है, उसकी एपीआई यूज करके उसका डेटा कॉल करके आप सब कुछ करोगे। बट व्हाट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो यूज केस की बेसिकली बिजनेस को यूज करेगा और उससे बेनिफिट्स क्या होंगे उसको। वन इज बिजनेस एंड द अदर इज लाइक स्टेट एजेंसीज। थिंक अबाउट इट, लाइक ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो उसको कैसे यूज कर पाएगी ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को। इफ यू डू रिसर्च यू विल गेट टू नो, आई मीन लाइक सो देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, थोड़ा सा रिसर्च, ठीक है। यस सर। यस, चलो गुड है। या मेघा, वो किड्स ट्रैकिंग सॉल्यूशन का पढ़ा था, पर ऐसा भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंस ओनली स्कूल्स के लिए ही है कि ओनली बच्चों के लिए ही है। हाँ, बच्चों के लिए है वो राइट है, पर यूज सब लोग कर सकते हैं। पर अभी ठीक। क्राइम ज्यादा हो गया है ना, पर क्राइम की वजह से वो थोड़ा हेल्पफुल भी रहता है, और पता भी पेरेंट्स को रहता है, क्योंकि आज के जमाने में सब पेरेंट्स वर्किंग हो गए, राइट। तो इतना टाइम बच्चों के पीछे नहीं दे पाते हैं, राइट। तो फिर फास्ट जनरेशन पे पेरेंट्स को पता भी रहता है कि अपना बच्चा किधर है, कहाँ है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़े देखे हैं, थोड़े के गैजेट्स है, सब ट्रैकर्स है। फिर उसमें है ना, कई लोग स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं, फिर कई लोग स्पीकर्स यूज करते हैं, कई लोग पैच यूज करते हैं वैसे कपड़े में लगाने का। तो अच्छा, मेरे को दो चीज अच्छी लगी। एक स्मार्ट वॉच इस अच्छी लगी क्योंकि स्मार्ट वॉच है ना, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। मतलब वो मेडिकल हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, फिर बच्चे का जाने का स्कूल का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, अब वो लेट होने वाला है या नहीं, एवरी 30 सेकंड 20 सेकंड उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म ही करता रहता है। फिर उसकी मतलब फिटनेस हेल्थ भी उसकी उसमें काउंट होते हैं, मतलब कैलोरी की, अब स्पोर्ट्स में जा रहा है वो सब। और दूसरी चीज वो है कि स्मार्ट वॉचेस का जो बेल्ट आता है ना, वो गिरेगा नहीं बच्चे से। और वो जो गैजेट्स आते हैं ना, तो वो बच्चे पॉकेट में रखेंगे, कहीं दौड़ेंगे या स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाएंगे तो वे गिरने की दिक्कत ज्यादा रहती है उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। सो सो ठीक है, ये एक यूज केस हो गया, राइट, कि हाँ बच्चे को आप ट्रैक कर सको। मैंने स्कूल इसलिए हाँ स्पेसिफिक बोला था क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि जैसे कि स्टूडेंट है या बच्चा है, वो स्कूल चला गया, हाँ उसके बाद हम पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि स्कूल में वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कितना एक्टिविटी कर रहा है, बैठ के पढ़ रहा है कि खाली खेल रहा है, भाग रहा है, राइट। दैट्स वन ओके थिंग। उसके ओके उसके स्कूल का क्या है, स्कूल की मतलब मान लो एक एक बाउंड्री बना दी आपने कि ये स्कूल के इस एरिया के अंदर ही रहेगा। अब स्कूल से जैसे ही वो बाहर निकलता है और अगर वो बस में बैठता है तो वो बस बस से जैसे घर आ रहा है तो पेरेंट्स उसको भी ट्रैक कर सके कि अच्छा अभी ये 15 मिनट में घर आने वाला है, राइट। दोस काइंड ऑफ थिंग आल्सो यू कैन ओके इंक्लूड। सो मैंने स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोला था कि अब इसमें अभी इसमें ये भी चीज है, सी लाइक व्हाट आई हैव गिवन यू इज लाइक अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको आप स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि ओके सो ये जो मैं किड ट्रैकिंग सॉल्यूशन बना रही हूँ वो बनाऊंगी मैं यस फॉर टू टू इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, परफेक्ट है। तो आप इसको दोनों को कैसे जोड़ सकते हो इन द सेंस कि राइट यस, जैसे जब वो स्कूल में है
सो ना जैसे स्कूल का एक डिफाइन किया हुआ सिस्टम या प्रोसेस, राइट, कि स्कूल में रहेगा तो ये सब चीजें होनी है, ये कंडीशन है, अगर वो स्कूल में है तो आई मीन लाइक सब कुछ सही है, अगर स्कूल से बाहर निकला तो एक नोटिफिकेशन आ जाए कि अच्छा ही इज जस्ट मूव आउट ऑफ स्कूल, उसके बाद में वो ट्रैक कर सके, तो वो पूरी जो स्टूडेंट की जर्नी है, किड की जर्नी है, फ्रॉम होम टू स्कूल, स्कूल टू होम, वो एक ट्रैक हो जाए, तो वन जर्नी होगी वो। दूसरी जर्नी है कि वो घर पे है, उसके बाद में मान लो खेलने गया, कहीं और गया, कुछ एक्टिविटी सीखने गया या फिर कुछ भी, तो उस केस में उसको भी ट्रैक कर पाए। तो आई मीन लाइक हाँ जस्ट ठीक है, आप स्कूल का एक पार्ट करो। अब इसमें भी ये देखना है कि आप ये पेरेंट्स के लिए कर रहे हो कि स्कूल के लिए कर रहे हो, कि स्कूल के जो एडमिन डिपार्टमेंट है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या एडमिन है, तो तो फिर वो स्कूल स्कूल के लिए करेंगे तो वो पूरा तो डिफरेंट ही हो जाएगा, मतलब प्रोसेस सेम रहेगी पर उसमें ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। हाँ, अब जैसे ये है कि जैसे एक किड के लिए बना रहे सॉल्यूशन, राइट, तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स एक्सेस कर पाएगा कि लाइक मेरा किड स्कूल में है या घर आ गया है, वो सब चीजें हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल ट्रैक कर रहा है, तो स्कूल सिर्फ एक किड को नहीं करेगा, पूरे सारे जितने अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 को ट्रैक कर पाए कि अच्छा ये बच्चा अभी अपनी क्लास में बैठा है, ये बच्चा आज हम्म, एब्सेंट में आया ही नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उस तरीके हम्म, से मैंने किड ट्रैकिंग सॉल्यूशन बनाया। अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये इसके साथ में अटेंडेंस सिस्टम भी जुड़ जाए। हाँ तो उसमें तो फिर सब कुछ आएगा ना, मतलब कौन सा क्लास चल रहा है अभी तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर उनसे उस क्लास में अपना बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो उस वो तो फिर सब कुछ स्कूल स्कूल के अकॉर्डिंग सब कुछ स्टडी करके पूरा ही पूरा उसका तो थोड़ा डिफरेंट ही हो जाएगा ना सर। हाँ, एकदम डिफरेंट होगा। तो यही है, अब डिसाइड करना है आपको, आप इसका प्रोडक्ट ओनर हो, कि आप हाँ की प्रॉब्लम जिस क्या है, मतलब कौन सी रियल नीड है। स्कूल वाली जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम फॉर द स्कूल्स, वो इम्पोर्टेंट है, वो रियल नीड है, या पेरेंट्स और के लिए सर रियल मेरे नीड। को एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये स्कूल्स के लिए बना है ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर स्कूल वाइज उसका वो जब वो वेब एप्लीकेशन उसका जो क्लाउड्स के सर्वर्स वो सब रहते हैं, वो पर्टिकुलर एक स्कूल वाइज के डिफरेंट रहेंगे या सब स्कूल वाइज के सेम रहेंगे, या तो कुछ सबके ऐसा ऐसा सिस्टम, सॉफ्टवेयर डालना हो कि सब स्कूल का नेम लेके और प्रोडक्ट सबको बेच दी। हाँ तो वही रहेगा। तो बेसिकली आपने एक SaaS प्रोडक्ट बना दिया, जो कि आप इंडिविजुअल स्कूल्स को बेच सकते हो। अगर एक को बेचोगे तो फिर तो आई मीन लाइक विल नॉट मेक मनी, राइट। तो एज अ हाँ प्रोडक्ट, या so the more school you're able to reach, the more money you will make. या Fine. So इसमें, हाँ तो I mean like see I've given you some problem statement, so now try to do some research and find कि कहाँ पे market gap है, right? यस अब जैसे हाँ ट्रैकर है, पर तो आई थिंक लाइक इंडिया में बहुत सारे आगे होंगे, इंडिया में चाइनीज है, बहुत सारे है, यूएस में है। अब कोई भी एक ट्रैकर ले लो, उसको आप इंटीग्रेट कर लो ब्लूटूथ के इस पे अपने मोबाइल के साथ, एंड इसको ट्रैक कर सकते हो, जैसे घड़ी भी कर ली। तो ये हम्म। क्या, अगर हम एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाते हैं ये वाला, तो क्या चांसेस है कि हम सक्सेसफुल होंगे? आई डोंट थिंक सो। जो आई थिंक सर बहुत सारे बन चुके हैं तो एक कंपटीशन हो जाएगी, तो जाएगा। फिर मतलब उसमें भी हमें कुछ रिसर्च करना है और उस लोगों से भी हम कुछ एडवांस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और ज्यादा कुछ स्मार्ट है तो फिर मार्केट में प्रोडक्ट चलेगी, वरना ऐसे वैसे सोच के दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। तभी मैं कह रहा हूँ उस स्पेस में एंटर करना है हमने, जहाँ पे हमें पता है कि फ्यूचर में बिजनेस अच्छा होगा, और हम अधिक वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे यूजर्स को, इन द सेंस स्कूल्स को, इन दिस केस। तो या थोड़ा सर्च करो, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स निकालो कि, और कंपटीशन थोड़ा एनालाइज करो, एंड देन विल डिसाइड कि कौन सा वाला हमने डायरेक्शन लेना है। ओके ओके श्योर श्योर ओके। परफेक्ट। या हाय नेहा, या गुड मॉर्निंग। Yes, sir. So my problem is new language learning application. तो राइट, बेसिकली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जो यूजर है वो सिर्फ बोलचाल के लिए अपनी लैंग्वेज सीखना चाहता है या फिर उसको रिटन प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, रीडिंग भी चाहिए। राइट, राइट। तो और एक चीज, हाँ, और सॉरी आगे सॉरी मैं ऐड कर एक चीज और इसमें एक चीज ये देखना है आपको कि वो जैसे आपने बोला कि वो प्रोफिशिएंसी किस लेवल पे चाहिए उसको, और वो क्या केस के लिए चाहिए, मतलब नॉर्मल अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कि प्रोफेशनल उसका केस है, राइट। yes, sir. या प्लीज, सॉरी, गो तो ऑन। या अगर हम
सिर्फ बोलचाल के लिए सीखना चाहता है तो हम चैटबॉट्स जो एआई के साथ चलते हैं, जिसमें हम सिर्फ स्पीच रिकॉग्निशन और क्या कहते हैं, जो चैटबॉट है वो ऑडियो मतलब प्रोड्यूस करेगा, तो उससे हम जो भी सीखना चाहता है वो बोलेगा, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सीखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा छोटे होते ही सीख लेता है, पेरेंट्स बोलते हैं, वो वर्ड्स लर्न करता है, फिर वो वही वर्ड्स बोलता है। और अगर वो सिर्फ लिखने के लिए या मतलब प्रोफेशनल के लिए सीखना चाहता है तो उसके लिए हम उसको मतलब पूरा सिखाएंगे, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं, वोकैबुलरी सिखाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे, जो कि टेक्स्ट के थ्रू भी हो सकता है, वो लिख के भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, वो बोल के, वीडियो कॉल के थ्रू किसी ट्यूटर के साथ सीखना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के साथ, जैसे कि अननोन कोई एक सेम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई 2 डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करके वैसे सीख सकते हैं। तो इसके काफी सारे मैंने वो देखे थे जो आजकल हमारे पास चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फेमस आजकल ड्यूलिंगो है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, गेमिफिकेशन के थ्रू पॉडकास्ट भी चलते हैं इसमें, और इसमें पर ट्यूटर का नहीं है मुझे मिला। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसके वेरियस लेवल्स होंगे। लेवल 1 उसमें बेसिक्स होंगे, लेवल 2 में थोड़े मतलब ग्रामर ऐड होती रहेगी, लेवल 3 में वोकैबुलरी ऐड होगी। तो ऐसे ऐसे करके इसमें जो है 5 लेवल अगर आपने कर लिए तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी मतलब प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं। अभी अगर आपने वीक तक प्रैक्टिस नहीं की तो उसके बाद मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए वो आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, मतलब इससे मेमोरी रिटेंशन भी होगा। गुड गुड, आई थिंक लाइक ठीक, आपने गुड रिसर्च किया। तो अभी आपको एक चीज़ ये भी देखना है, राइट? जैसे आपने बोला कि किस लेवल पे हो है, जैसे कि यूज़र, मतलब मैं अगर फ्रेशर हूँ एकदम, मतलब मुझे लैंग्वेज की मालूम ही नहीं है, स्टार्ट में हूँ एकदम, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लर्निंग जर्नी है, तो राइट मेरी नीड अलग होगी, मुझे तो बेसिक चाहिए होगा, ठीक है? एक समवन है हु इज़ लाइक लेट्स से थोड़ा सा जानता है, ओके, अब उसकी नीड अलग होगी, और एक ऐसा है यूजर जो थोड़ा सा जानता है बट नाउ ही वांट्स टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मे बी लाइक हिज, उसका रीजन ये है कि वो एक न्यू कंट्री में जा रहा है, जाके वो वहाँ पे वो लैंग्वेज उसको यूज करनी पड़ेगी, राइट? So one, yes, you'll have to understand the users, and how can you understand the users? By doing the research. और जब आप रिसर्च कर रहे होगे तो लोगों से आपने ये पूछना है कि आप एट दिस टाइम अगर आपको कुछ सीखना है या सीखने की कोशिश करते हो लैंग्वेज, तो आप प्रोसेस क्या फॉलो करते हो? तो इन दिस सेंस आपको इसमें डीप रिसर्च करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें व्हाट आई थिंक इज लाइक आपको ये पता करना पड़ेगा कि लोग जो करंट यूजर्स है, जैसे मैं मान लो अगर मुझे फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच सीखने का मेरा प्रोसेस क्या होगा, अभी मैं एट प्रेजेंट कैसे सीखता हूँ? अगर आप लोगों से बात करोगे तो दे विल से दैट यस, आई मीन लाइक व्हाट वी डू इज लाइक वी डाउनलोड ऐप एंड वी देन ट्राई एंड लर्न फ्रॉम दैट, बट उसका सक्सेस रेट क्या है, राइट? when compared with the success rate of people who actually join an institute or maybe like talk to uh, some real people, हाँ, some people ना, like some लोगों से बात करके जब सीखते हैं, जैसे आपने बताया Duolingo, it's a very interesting app, जिसमें जिसमें gamification everything is very nicely done. Similarly there's another app called I think Cambly है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हो। आप वहाँ पे घंटे वाइज पैसे देते हो। आपने बोला कि यस आई वांट टू टुडे लाइक लेट्स से टॉक विद नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, फ्रेंच इंप्रूव करनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग नेटिव पीपल्स होंगे ऑनलाइन, आप उसमें से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो और उससे बात कर सकते हो, एंड देन दैट इज हाउ यू ऑल्सो कैन प्रैक्टिस। एंड जो सामने वाला जो नेटिव स्पीकर है, ही बेसिकली गाइड्स एंड एक्सप्लेन्स कि अच्छा आपने यहाँ गलत किया, ये ठीक किया, यू शुड इम्प्रूव इन दिस space and so on. So the idea here is that yes, you'll have to first understand the real needs and the process, the current process of the users, and where they failed and what worked for them, and then try to replicate or basically bring that experience onto the digital platform. That's the digital product that you're trying to create. And in this case I think like mobile app will work for you, है ना? तो मोबाइल ऐप पे फोकस करके बनाते हैं हम लोग उसको, ठीक है? तो ये इजी है, ये तो मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट व्हाट आई वांट टू सी इज दैट कि आप इनोवेशन कहाँ लेके आते हो, ओके? ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो नील, यू देयर? यस सर। आपने कुछ किया था? थोड़ा सा करा हुआ है जी। जस्ट। तो स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन अगर B2B पर्पज से हम देखें तो बेसिकली ये ओवरऑल पूरी बिल्डिंग के बारे में है, और एक बिल्डिंग जितने सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं,
इकोसिस्टम का एक इकोसिस्टम पूरा बनेगा, जैसा कि मैंने थोड़ा रिसर्च कर मैं देख रहा हूँ। तो अगर फ्रेमवर्क वाइज देखा जाए कि ठीक है फायर डिटेक्शन है, तो इसका एक अलग ही पूरा इकोसिस्टम है कि कैसे काम करता है फायर डिटेक्शन। एंड मैनेजमेंट इसका एक पूरा अलग ही होगा कि पूरा किस वे में काम करता है, वाटर कैसे होता है, मतलब पूरी जर्नी कि वाटर कैसे फिल करते हैं, कहाँ कहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स हो सकते हैं, किस जगह पे, जैसे मैनेजमेंट पूरा स्टोर करना है, स्टोर करने से लेके लोगों को प्रोवाइड करना, जो भी और भी चीजें, पूरी सिस्टम को समझने के लिए मुझे थोड़े से और डेटा की जरूरत है। तो ओवरऑल मतलब क्या क्या है आ सकते हैं उसमें से, लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गई, या फिर ह्यूमिडिटी हो गया, सेंसिंग करना ह्यूमिडिटी, एंड मेंटेनेंस हो गई, ऑन साइट टेक्निकल सर्विसेज हो सकती हैं अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियो सोल्यूशन भी हो सकता है इसका, कि इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो, एंड मतलब फॉर द सिक्योरिटी पर्पस एंड वैसा। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन हो सकती है कि मतलब कुछ ऐसे पीपल ना आए उस बिल्डिंग में, या फिर जैसे कि आउटर हो जिनकी कोई आइडेंटिटी ना हो, गलती से घुस गए हो, वो सारा। एंड लाइट मैनेजमेंट अपना एक पूरा ही अलग इसमें होगा बड़ा सा मॉड्यूल। एंड ओवरऑल मोटा मोटा लाइक पूरा फ्रेमवर्क का एक पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है, एंड एक एक चीज को पूरी डीप में स्टडी करनी पड़ेगी कि काम कैसे करता है, और इस डिवाइस को पर्टिकुलर कहीं भी जो भी इसका डेटा लेके आना है, तो उस डेटा को मतलब किस डिवाइसेस या सेंसर्स के थ्रू हम उस डेटा को लेके आएंगे, एंड स्टोर कैसे करेंगे, एंड कैसे शो करेंगे, एंड मेजर कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे सर पैरामीटर्स एंड वो बन रहे थे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा मतलब अभी और डेटा चाहिए मुझे इसको ठीक से समझने के लिए। इवन मुझे मतलब विजिट भी करना पड़ेगा या मिलना भी पड़ेगा, आई थिंक, मतलब जो भी बिल्डिंग ऐसे मतलब होते हैं। हाँ, और एक चीज़ है इसमें, जब आप रिसर्च करोगे तो आपको एक बिल्डिंग में सारे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। राइट सेंस सारे यूज केस नहीं मिलेंगे। किसी में हो सकता है कि सिर्फ 2 हो, कि एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सिर्फ किसी में हो सकता है कि खाली प्रोएक्टिव कोई मे बी लाइक मेंटेनेंस सॉल्यूशन हो, या फिर कुछ सर्विसेज हो। तो सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी में सिर्फ हो सकता है कि स्मार्ट जो लाइट होती है, या फिर टेम्परेचर होता है, वो सब चीज़ मॉनिटर होता हो, मैनेज होता हो। फाइन। बट द थिंग इज दैट आई मीन लाइक यू हैव टू बिल्ड वन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि बड़ी-बड़ी एजेंसीज, बड़ी-बड़ी कंपनीज यूज कर सके, करने के लिए रेडी हो। तो आपका वो सॉल्यूशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। सो यस, यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉम्पिटिशंस, एंड आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द आईओटी, लाइक हाउ दिस आईओटी वर्क्स, दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट होगा, उस कम्युनिकेट जो भी हो रहा है डेटा, वो डेटा को आप किस तरीके से यूज करोगे, राइट? क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट डेटा। आप डेटा को कैसे यूज करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या फिर रिकमेंड कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, और व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। सो मशीन, इंटेलिजेंट मशीन बनानी पड़ेगी फॉर द बिल्डिंग्स, राइट सर। राइट? फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक टेनेंट हूँ, और मैंने इस बिल्डिंग में अपना वो लिया है, एक लेट्स से बेड 2 BHK लिया है, राइट? तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस बिल्डिंग के साथ, या फिर ओनर के साथ, तो वो सारा का सारा इस सिस्टम पे हो। अब और जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होता है, मेरी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो भी कंप्लीट होती है, तो अपने आप मेरा एक्सेस चालू हो जाए। राइट। और जिस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उस दिन मेरा एक्सेस बिल्डिंग से अपने आप चला जाए। सो आपको एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि पार्किंग है, पार्किंग एक्सेस होता है गाड़ी का, है ना, गाड़ी के लिए पार्क करने के लिए। तो वो पार्किंग सिस्टम भी एक्सेस जो सिस्टम है वो भी ऑटोमेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी मैनेजमेंट के पास जा रहे हो, बोलो कि मुझे पार्किंग दो, उसका एक्सेस दो, सब कुछ ऑटोमेटेड। सब कुछ जिस दिन शुरू हुआ उस दिन एक्सेस चालू, जिस दिन बंद हुआ उस दिन एक्सेस खत्म। नहीं, उसका पार्किंग लॉट जो होती है, अलॉट होती है वैन गाड़ी के लिए, तो वो भी मतलब उसे अलॉट हो जाए जैसे ही मतलब वो आके उस बिल्डिंग में बिल्डिंग हाँ, तब होता है। ओके। अब उसके बाद इसमें ये भी हो सकता है कि अब जैसे मान लो वन थिंग है कि सिस्टम ने प्रेडिक्ट कर लिया कि लेट्स से फ्लैट नंबर 1010, ओके, इसमें लीकेज है,
मतलब जो रहने वाला टेनेंट है उसको नहीं मालूम है, बट सिस्टम ने पकड़ लिया, इंटेलिजेंस सिस्टम के सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अपने आप वहां से एक नोटिफिकेशन चले जाए और आ जाए यूजर के पास या टेनेंट के पास कि लाइक यस वी थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, सो वी वांट टू कम एंड चेक। Right. नोटिफिकेशन अभी टेनेंट के पास चला जाए, टेनेंट देखेगा और अप्रूव करेगा तो वो अपने आप आएंगे। सो बेसिकली सारा का सारा डिजिटल होना चाहिए, दैट Right. जर्नी। एंड सर ये होता है कि हर पर्टिकुलर रूम या ऑफिस हैं या रूम है तो उसमें एक साउंड सिस्टम हो जिसमें कि नोटिफिकेशन के साथ साथ हम ऑडियो नोट्स भी भेज सकते हैं कि अगर हमने फाइंड कर ली कि ये प्रॉब्लम है तो वहां पे आप तो अलार्म बजा सकते हैं या फिर हम ऑडियो नोट्स भेज सकते हैं। Yeah, I mean, yeah, so think about it, okay? सोचो. And the Right. good thing is, what you should do is like, instead of thinking अकेले अकेले, you should connect with other people in the group. कि चलो हम लोग आज शाम को या फिर कल शाम को 2 घंटे 1 घंटे बैठ के ना लेट्स ब्रेनस्टॉर्म, आई हेल्प यू विथ योर सोल्यूशन एंड यू शुड हेल्प मी विथ माय सोल्यूशन। तो आप लोग Yes, को 3-3 4 का ग्रुप बना के आप लोगों को करना चाहिए। yes, सर करेंगे। मैं इतने ही हैंड होल्ड कर सकता हूँ कि हाँ, मतलब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्या डायरेक्शन है, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और आप जो बना रहे हो उसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ, सही डायरेक्शन में ला सकता हूँ। बट यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट एंड आई कैन गारंटी कि अगर आप ये सॉल्यूशन बना लोगे, तो आप अगर अपने आप को बाद में इवैल्यूएट करोगे, लेट्स से लाइक 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद, तो आप देखोगे कि लाइक आप एकदम इवॉल्व कर चुके होगे, मतलब ऐसा डिज़ाइनर। और मैं पूरा अभी आपको अभी तक सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इसके बाद में विल डू एवरीथिंग जो कि हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए काम करते हैं, एक लाइक रियल सिनेरियो, एक रियल केस में। ओके, हाँ, एक्चुअल में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ हम स्किप कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, डेडलाइन, टाइमलाइन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट जो एसेंशियल्स है वो मैं बताऊंगा कि उसको कभी मिस नहीं करना है। तो वो हम विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। सो राइट, सो अभी तक टिल नील किसी को भी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है? नहीं सर, बस बेसिकली मुझे ये थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए ना आई थिंक कि एक बारी मुझे मतलब जाके वहां पे वैसा विजिट करना या समझना पड़ेगा या फिर वैसा कोई वर्कर है, आई थिंक वर्कर ज्यादा बता पाएगा कि अगर वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहा है, जैसे फायर डिटेक्शन वाले में काम कर रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है, क्या होता है, जैसे स्मार्टली अगर वैसा कुछ यूज कर रहा है तो वो ज्यादा और बेहतर तरीके से मुझे बता पाएगा, तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी एंड हेल्प आएगी सो दैट मैं उस इंफॉर्मेशन को मतलब ठीक तरीके से सिस्टमाइज कर पाऊंगा एंड आर्टिकुलेट भी कर पाऊंगा ताकि मैं उसका सोल्यूशन बना सकूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे एंड फिर उन सारे मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है। अब इसमें ये सब कनेक्ट करने से पहले या मॉड्यूल के बारे में डिसाइड करने से पहले आपको सेकेंडरी रिसर्च करना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज, सो इंस्टेड ऑफ लाइक स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन डूइंग ए प्राइमरी रिसर्च, फर्स्ट व्हाट यू शुड डू इज लाइक अंडरस्टैंड द मार्केट नीड, ओके, और कहाँ पे गैप है, या फिर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। सो सेकेंडरी रिसर्च विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द इकोसिस्टम, अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द वर्टिकल। तो अगर आप सेम ऑफरिंग भी लेके आते हो तब भी ठीक है, बट योर प्रेजेंटेशन, योर एक्सपीरियंस शुड बी यूनिक, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी वेरी इजी। ठीक है, तो वो देखना है। इट कुड बी लाइक लेट्स से लाइक अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है मार्केट में और एक यूजर को एक काम करने के लिए लेट्स से उसको 1 मिनट लगता है, अगर आप उसको आधा मिनट में खत्म करा दोगे वही काम को, आई मीन पीपल विल स्टार्ट मूविंग टू योर प्रोडक्ट एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट, क्योंकि एट द एंड टाइम इज मनी, राइट। तो एवरीडे अगर आप एक टास्क में, छोटे से टास्क में आधा आधा मिनट बचा रहे हो, तो थिंक अबाउट कि अगर वो दिन में 20 टास्क से 50 टास्क करता है तो आपने कितने टाइम बचा दिया उसको। सो हर बार इनोवेशन लाना जरूरी नहीं है, हाँ, बट इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इफ यू कैन ऐड वैल्यू इन मे बी लाइक सम अदर वे, दैट्स स्टिल गुड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यस चलो नील, आई थिंक लाइक यू आर गुड नाउ। निनत, यू देयर? यस सर। हाँ, आपने किया कुछ ऑन डिमांड सर ट्रांसपोर्ट? आई मीन थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, राइट, लाइक जो भी मतलब क्या है ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट इट फोकसेस ऑन एंड सम वन कॉम्पिटिटर्स है जैसे little। अच्छा, कंप्यूटर बाद में, पहले ये चीज है कि आपने समझा क्या इससे, लाइक व्हाट इज ऑन हाँ ओके। डिमांड, वो इंपॉर्टेंट है सबसे। वहां अगर गड़बड़ होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने गड़बड़ नहीं करना है। तो क्या है ये ऑन डिमांड ट्रांसपोर्ट सिस्टम? मतलब ये सब फोकस करता है कि अभी लार्ज कोर्ट्स या फिर पर्सनलाइज सर्विस उनके लिए ऑन डिमांड जो भी कार व्हीकल्स जो भी चाहिए, फेरी बोट्स और एनीथिंग दे प्रोवाइड वाया एप्स।
फाइन। तो अब ये जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो कौन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस? खाली कार, ओला, उबर और समथिंग एल्स? No, it can be buses also. वंडरफुल, बसेस आल्सो। उसके बाद में Buses, उसके auto बाद rickshaws or anything. हाँ, कुछ भी होता। अब मैं एक अलग अलग आपको एक डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। अब मुझे Okay. एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो वो होगा Okay. इसमें, होना चाहिए Yeah, ना? it should be. Yeah. So now start thinking from that point कि ओला उबर पे तो कर लिया जो, ठीक है? तो अगर हम उस Yeah. इंडस्ट्री में, तो I mean like we'll not be able to achieve lot of success because we'll have to burn lot of money to first create our presence or basically our brand value, and उसके बाद में कुछ Yes. होगा। तो उतना पैसा तो होगा नहीं किसी के पास कि मतलब उनसे compete करे अभी। तो Sir. हम क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आए जिससे कि हम रेलेवेंट रहे इंडस्ट्री में, मार्केट में। तो जैसे मैंने एक बोला आपको, जैसे आपने बोला कि हाँ, सिर्फ हम कार टैक्सी बस, कार टैक्सी नहीं रखेंगे हम, इसके अलावा विल गो इनटू बस आल्सो, राइट? हो सकता है कि वैन sir. हो गया, हो सकता है कि मैं जो मूवर्स एंड पैकेट्स वाले ट्रक होते हैं वो हो गया, उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस हो गया, राइट? सो इस Yes. तरीके से और भी बड़ी सारी चीजें होंगी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए यूज होता है। सो Yeah. वो होना चाहिए, ठीक है? तो उसके अराउंड आपको पहले तो फिगर आउट करना चाहिए कि कौन कौन से तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, और उस केस में उसको यूज कौन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिविजुअल यूजर हूँ, मैं एंड यूजर हूँ, तो मेरे को किस लिए चाहिए होगी? हो सकता है कि मुझे टैक्सी चाहिए जैसे ओला उबर वाली है, या हो सकता है कि मुझे कभी किसी फंक्शन के लिए बस या कुछ और बुक करनी है ना? Okay. या फिर हो सकता है कि हाँ, जैसे मैंने बोला अर्जेंट इमरजेंसी केस के लिए एम्बुलेंस हो गया। ये तो हो गया एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस ओनर हूँ, मेरे पास लेट्स से मेरी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं, राइट? और फिर हमारा एक एनुअल इवेंट आ गया कंपनी का। अब जो लोग हैं उनको लेके जाना है कहीं और, मान लीजिए दिल्ली से ऋषिकेश लेके जाना है फॉर सम इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट, तो उनके लिए उनको बस चाहिए होगी। Yes. तो इस हिसाब से आपको ये सोचना है कि अगर एक एंड यूजर आया तो उसके यूज केसेस क्या क्या होंगे, किस लिए वो ये प्रोडक्ट यूज करेगा, और एक बिजनेस अगर आता है तो वो किस लिए यूज करेगा। आई मीन लाइक यू हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, ठीक है? Okay, sir. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट किस किस चीज के लिए यूज होता है। Okay. तो इसके अराउंड सोचना आपने, ओके? Yes, sir. ठीक है, तो अभी थोड़ी क्लैरिटी आई आपको? Yes, yes. गुड। राजू, या राजू किधर है? यस यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्या समझा इससे? मतलब सोशल ब्रांड सोल्यूशन, मतलब कोई भी ब्रांड है उसका हमें सोल्यूशन देना है, और मतलब कंपनी के लिए भी हो सकता है और सिंगल आदमी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा था, बट अच्छा है आपने जोड़ दिया कंपनी। सो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप और मुझे और उस पर इलेबोरेट करना। सो अभी क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं मनप्रीत, ओके? तो मेरे को हो गया मान लो इंडस्ट्री में 17 साल हो गए, इंडस्ट्री में 18 साल 17 साल हो गए। अब इस टाइम पे मैं क्योंकि ऑनलाइन रहता हूँ हमेशा, मतलब क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर और भी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें मैंने जाके जैसे मान लो कहीं कुछ कमेंट किया हो, या फिर कभी मैं गुस्से में कुछ लिख दिया, राइट? कुछ पेज पे मैंने अपलोड कर दिया। अब होता क्या है कि वो चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, वो क्योंकि मैं तो ऑन नहीं करता, मैंने तो अपलोड कर दिया और मेरे पास एडिट की राइट नहीं है, डिलीट की राइट नहीं है, तो वो वहाँ रह जाती है ऑनलाइन स्पेस में। या फिर मैंने कोई पेज अपलोड कर दिया और मान लो मैंने अपने सर्वर पे ही किया जो मैं ओन करता हूँ, बट बाद में क्या हो गया, गूगल ने कैशे कर लिया उसको, और गूगल का कैशे हटता नहीं है। तो जब कोई सर्च करता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन दिख जाती है गूगल सर्च रिजल्ट में। अब अगर मान लो कि मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट एक यूज केस है ये, ठीक है? अब जब ये मैंने अप्लाई किया तो क्योंकि होता मैक्सिमम होता है ये कि जो एचआर मैनेजर्स या फिर अदर लोग जो होते हैं, तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करते हैं कि आप कौन हो, क्या क्या किया है आपने, तो वो सारे चेक करते हैं। और अगर आप मान लो कि आप लोगों ने या मैंने कुछ भी गलत चीज़ें कभी पोस्ट करी हो, मे बी लाइक पॉलिटिकल, मे बी लाइक सम अदर थिंग, राइट? उससे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरा जो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब वो हो कि मैं सेलेक्ट ना हूँ,
वो कम हो जाती है। तो ये मैं सिस्टम इस ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम जिसमें मैं एज अ यूजर जाऊं, ठीक है, या फिर कंपनी जो है जाए और वो अपना कंपनी का नाम या जो भी कीवर्ड है वो डाले। डालने के बाद में सिस्टम उसको ये बता दे कि ओके सो योर रैंकिंग इज लाइक लेट्स से 7, ओके, आउट ऑफ 10। और आपके जो है बाकी सब चीज़ें हैं ठीक है, बट ये 3 चीज़ें जो हैं या 10 चीज़ें जो हैं, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट गुड। सो यू शुड गो एंड फिक्स दिस थिंग्स। अगर मान लो कि वो बताएगा कि अच्छा आपने फेसबुक में इतनी तारीख को ये पोस्ट डाला था जो कि नेगेटिव है, जो कि हेट्रेड को की तरफ है, या फिर किसी और मतलब लाइक नेगेटिव आपका नेगेटिव रिफ्लेक्शन दिखाता है उसमें, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि इसको समझने के लिए कैसे हम समझेंगे, लाइक पीपल के रिएक्शन पे समझेंगे कि ये हेटरेट है, या फिर ये इस काइंड ऑफ की फीलिंग या फिर एनर्जी वो है, या फिर पहले ही वो हम अपलोड करेंगे तभी वो समझ जाएगा कि ये उस तरह का है, मतलब अपलोड नहीं करना। जब हम गूगल पे जाते हैं कुछ भी लिखते हैं तो गूगल हमारी कैसे कैच करता है, हमारी हिस्ट्री पे रिकॉर्ड होता है। तो वो क्या है, जब तक आप उस ब्राउजर को डिलीट नहीं करोगे, मतलब उसकी जो हिस्ट्री को, वो तब तक ही दिखाएगा आपका। हाँ, तो इसमें इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे नील बोल रहे थे कि मैं जब अपलोड कर रहा हूँ तब बताए, वो तो अलग चीज़ है, बट जो पीछे हो चुका है उसको मैं कैसे ठीक करूँ? अब जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरा एक रिकॉर्ड बन गया, हिस्ट्री बन गया, तो उस बीच में मैं कितने लोगों से मिल रहा हूँ, क्या है, वो सारा कुछ एक तरह से स्मार्ट नहीं, वॉच की तरह। वो ठीक है, वो बट वो आई थिंक वो कंपनीज को एक्सेस नहीं होगा। वो आप, हाँ, आप खुद मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि मैं बोल दूं गूगल को कि भैया मेरा आप ना हिस्ट्री ट्रैक मत करो, या फिर जो मेरे पास हिस्ट्री उसे रिमूव करो। दैट्स अनदर यूज केस। बट यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एज एन इंडिविजुअल जो मेरे प्रोफाइल है, ऑनलाइन प्रोफाइल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी। तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है हमने यहाँ पे, जो जहाँ पे एक एंड यूजर आए, उसको हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्कैन, सोशल स्कैन करके दें, ऑनलाइन स्कैन करके दें कि ओके सो आपके जो जो नाम है, जैसे मान लो मेरा मनप्रीत सिंह कलसी है या मनप्रीत कलसी है, राइट। तो ये मैंने कीवर्ड डाल दिया कि ये 10 कीवर्ड है मेरे कीवर्ड, कलसीफाई, मनप्रीत कलसी, मनप्रीत, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत XYZ, राइट। तो वो डाल करे ऑनलाइन और बताया मेरे को कि अच्छा आपका जो नाम है ये कम से कम 50 जगह मेंशन है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। उसमें से फिर वो चेक करके ये बताया कि अच्छा आपके जो 50 में से जो 40 है, आई मीन उसमें तो कोई आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बट ये 10 जो है इसमें प्रॉब्लम है। बिकॉज हो सकता है कि ये कोई गलत वेबसाइट में लिस्टेड हो मेरा नाम, राइट। जैसे कि आजकल पता नहीं लगता ना, लोग तो आपकी सोशल फोटो लेके कहीं और चिपका देते हैं और आपका कुछ नेगेटिव कुछ कर देते हैं, राइट। आजकल तो चलता है नहीं सब। तो आप अपनी प्रोफाइल को, ऑनलाइन प्रोफाइल को कैसे हेल्दी रखें, उसके अराउंड ये सिस्टम है। जैसे लड़कियों के लिए बहुत काम की चीज सॉल्यूशन बनेगा, हम जैसे लोगों के लिए भी बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी बड़ी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, तो वो स्कैन करके देखते हैं, वो पूरा चेक करते हैं कि आप कौन हो, आपने पास में क्या क्या किया है। तो अगर नेगेटिव कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा तो मेरा चांस है कि मैं जॉब मुझे नहीं मिलेगी। तो उसको क्लीन आउट करना, उसको इम्प्रूव करना। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत है, और उस 5 चीज़ों को देन कैसे इसको क्लीन अप करना, मे बी देन आप कुछ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या कुछ कुछ ऐसा सर्विसेज दे सकते हो कि अच्छा वो जो आपके 5 जो नेगेटिव जो लिस्टिंग है उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकें। इसके अराउंड SMO के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज SMO। दो चीज़ें हैं, आप इसको कंपनी का ले लो या इंडिविजुअल का ले लो। मैं बता रहा हूँ कि अब जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल एक जो यूजर है एक बंदे के लिए। उसकी प्रोफाइल होगी। अब इसी तरह से अगर इसको हम इंडिविजुअल हटा के कंपनी कर दें, मान लो कंपनी हो गया ABC कंपनी, राइट। तो ABC कंपनी का सेम चीज़ है कि अच्छा ABC कंपनी के बारे में कहाँ कहाँ पे बताया गया है, राइट, और उसमें से कितनी चीज़ें नेगेटिव है और उसको हम कैसे क्लीन अप कर सकें। सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके। ठीक है। सो सोशल प्रेजेंस जो है उसको पॉजिटिव कैसे रखना है, उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसके अराउंड सॉल्यूशन है ये। तो सॉल्यूशन क्या करना है, दिस इज जस्ट थॉट, अभी इसको इवॉल्व करना है आपने। फाइन। ठीक है सर। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज रिया।
यस सर। Yeah. तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, लाइक इट स्टिल रिक्वायर्स डीप डाउन Fine, that's fine. और थोड़ी, तो मैंने रिसर्च किया कि पहली बात कि कितने तरह के डिजास्टर्स होते हैं। तो देयर इज मेनली 4 टाइप्स। और उसके बाद पता चला कि देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसके 4 फेजेस होते हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। ये 4 फेज हर एक डिजास्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। आफ्टर दैट आई वेंट ऑन टू सी कि अभी कौन से टेक्नोलॉजी कौन सी जगह यूज हो रहा है। So I came across 2 startups that are there in India along with Toshiba के कुछ प्रोडक्ट्स थे। तो बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आप डिजिटल सोल्यूशन दे सकते हो कि प्रेडिक्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, डेटा, जो भी है। एंड देन देयर इज फिजिकल प्रोडक्ट्स की आप उनके कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हो, रेडियो ट्रांसमिशन की जरूरत होती है उसके लिए क्या कर रहे हो, फिजिकल लाइक विजुअल कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, उसका आप क्या कर रहे हो, एंड हाउ डू यू रिले योर होल इंफॉर्मेशन इन ऑल दीज 4 फेजेस। तो ये 2 तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं। तो और जरूरत है अभी मुझे रिसर्च की, बट दिस इज व्हाट आई हैव कम अक्रॉस। This is very good. I mean, like in the right direction because ये जो है बड़ा ही वेग टॉपिक है. ओके, आई मीन लाइक इस बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है. इसमें आपको नैरो डाउन होना पड़ेगा और करना पड़ेगा. तो क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आप किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए सॉल्यूशन बना रहे हो, एंड यूजर के लिए बना रहे हो या डिफरेंट लेट्स से ज्योग्राफी स्पेसिफिक किसी लेट्स से डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जो कि मैनेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को, उसके लिए स्टेट लेवल के लिए कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन दैट कि हमारा टारगेट यूजर क्या है और आप किसके लिए बना रहे हैं. सो डू योर रिसर्च एंड व्हाट विल डू लाइक विल कनेक्ट मोर. अब जैसे आप लोगों को जैसे किसी को भी जैसे अभिषेक से लेके सुधीर तक किसी को भी प्रॉब्लम होगी कभी भी तो मेरे को मैसेज कर देना कि सर आपसे बात करनी है आधा घंटे. सो विल टॉक मोर ऑन दिस. So now, yes, we'll continue these sessions, but again, like individually also, I mean, like whenever you need me, मेरे को बता देना और जैसे ही मेरे टाइम मिलेगा तो we'll sit and like talk, okay, coordinate करके. Yes, sure Apart sir. from our sessions, yes. So now, so this is good. I mean, Ria, thank you so much. So आपको but yes पूरा इसमें हाँ, yeah, please. इसमें एक और पॉइंट था जो कि काफी अच्छा लगा, लाइक दैट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ दिस AR VR ट्रेंड वाला चीज था कि दे वर यूजिंग वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेनिंग द सर्विसेज, लाइक उनकी सर्विसेज होती है राइट, बहुत लोगों की, लाइक फायर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, फायर एक्सटिंग्विशन एंड ऑल दैट। तो वो लोग सिमुलेशन के थ्रू they were training people for various things and various situations. So that is one unique point I came across and very nice actually. Very good. Okay, so one more thing. So since we're talking about this, so whenever you're creating any product, so try to make use of the technology, the new technology, what we have, right? AR hai, VR hai, then machine learning, augmented machine learning, AI hai, then NLP hai, right? So आप जैसे मेटावर्स हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब भी चलेगा, बट लाइक स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट और इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकें वो देखना है हमने. जैसे कि वॉइस UI है या फिर CUI है, राइट? जैसे कि वॉइस जैसे जैसे सीरी हो गया या फिर कोटाना हो गया. हाउ कैन वी यूज दीज ऑल्सो व्हेन बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट्स ताकि वॉइस ज़्यादा हम यूज़ कर सकें, राइट? वो भी चीज़ें देखनी है हमने. Yes sir. Yeah, perfect. So good work. Shayan, you there? यस सर. हाँ जी, आपने किया कुछ? हाँ सर किया. ये बहुत चैलेंजिंग है ये भी, ठीक है आपको? हाँ यूनिक है एक्चुअली. मैंने थोड़ा बहुत तो किया है, मतलब फिजिकली तो नहीं कर पाया, मतलब 1-2 दिन में मेरे को नहीं मिला कोई. हाँ तो एग्जिस्टिंग डेटा से मैंने ना थोड़ा बहुत किया है. मैंने तो 5W1HP फॉर्मूला यूज किया है थोड़ा बहुत, और उसमें कि वर्चुअल असिस्टेंट फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स जो मेरा टॉपिक था, मतलब असेसमेंट था. तो वर्चुअल असेसमेंट में ना स्पेशल नीड्स रिलेटेड टू आपका पड़ता है कि जो डीफ एंड ब्लाइंड्स है ये भी आता है, फिर डम है जो बोल नहीं सकता, ठीक है. तो ये सब आता है. अब वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग समझते हैं कि सीरी हो गया, फिर इन केस ऑफ एलेक्सा हो गया, इन केस ऑफ गूगल असिस्टेंट करके हो गया, जो लोग AI टेक्नोलॉजी यूज करता है. बट आपने टॉपिक ही दिया था स्पेशल नीड्स, जो अनेबल टू स्पीक और मे बी अनेबल टू सी और अनेबल टू हेयर कर.
वंडरफुल। तो उसमें क्या है ना सर, मैंने थोड़ा ना यूएसए का डेटा थोड़ा निकाला है, ठीक है। तो कुछ मतलब एक दो आर्टिकल मैंने देखा था, तो यूएसए में थोड़ा देख के वहां पे मेरे को पता चला कि रफली ना 45 to 50,000 deep blind people is there in United States, राइट। according to National Center of Deep Blindness, जिसमें 10,000 सिर्फ अंडर एज 22 साल का, मतलब अंडर एज 22 साल के कम में है। तो वहां पे ना कुछ वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी की यूज करे जो टीवी, जैसे ब्लाइंड का मेन चैलेंज होता है जो टीवी देखना है, तो वो ना टीवी अगर ब्लाइंड अगर उसको सुनाई देता है तो ही कैन लिसन, बट अगर बहुत डीप एंड ब्लाइंड है तो उसको कैसे फील होगा जो नॉर्मली आदमी टीवी देख के और सुन के वो फील करता है। तो वो ना प्रोडक्ट वो लोग ऑटोमेटिक, एंजल गार्सिया बोल के एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो स्पेन से है, तो वो लोग वो चीज को डेवलप कर रहा है कि जो सेम टेक्नोलॉजी वो लोग पहले तो एआई यूज करता है वो लोग, ठीक है। और इसमें ना वो आपका यूज करके थ्रू रेडिएशन के थ्रू, इट्स नॉट कॉल्ड रेडिएशन बट इट्स काइंड ऑफ वेव, वो फील कराता है कि कैसे करके आप लोग मतलब जो सेम चीज आदमी यूज करता है, बट वो प्रोडक्ट अभी तक नहीं, मतलब मार्केट में नहीं लॉन्च हो रहा है, बट वो करेगा धीरे। एंड सेम थिंग हमारे इंडिया में भी एक है जो शार्क टैंक इंडिया में भी आया था, शायद एनी करके एक प्रोडक्ट है जो थिंक अगर लैब का नाम है कुछ, थिंकरबेल लैब्स करके बैंगलोर में। तो वो लोग भी सेम करता है कि आप थोड़ा ना वो वेब के थ्रू से, रेडियम वेब के थ्रू से आप उसको समझ के आप जो भी पढ़ना चाहते हो, बोलना चाहते हो इन एजुकेशन सिस्टम में आप वो कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने वो वाला कंपटीशन कौन कौन है हमारा कंपटीटर मार्केटर ये सब नहीं किया, बट नहीं, ठीक है। हाँ, बट ये थोड़ा बहुत ये समझा कि जो मतलब आपने जो बोला ना कि अनेबल टू सी, डीफ एंड डम, इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने ये थोड़ा पढ़ा है। अब और क्या क्या इसके ऊपर करना है, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करके करूं। तो ये अगर क्यों यूज कर रहे हैं, यूज करने का जरूरत क्या है, कौन हमारा टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट होगा तो डिफ एंड डम स्कूल भी होता है, B2B भी आता है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जो नॉर्मल आदमी खरीदता है थ्रू परचेस का, या ऑनलाइन से या तो मेडिकल शॉप में या कहीं से भी। और B2B में आता है हॉस्पिटल या स्कूल्स जो होता है, डिफ एंड डम स्कूल या ब्लाइंड स्कूल, बहुत सारा एनजीओ होता है, बहुत सारा कैंप होता है जो देख नहीं पाता है उन लोगों के लिए। हॉस्पिटल को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इनके सब ये सब सेगमेंट में हम लोग ये सब चीज को अगर प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग बेच सकते हैं। बट इस बेचने वाला जो कमर्शियल वाला चीज है, मैंने उतना ज्यादा नहीं रिसर्च किया। ठीक है, अभी नहीं करना। अभी हमने देखना है कि सबसे पहले फाइंड करना है कि रियल प्रॉब्लम सेगमेंट क्या है। जैसे कि हम बोल रहे हैं स्पेशल नीड्स, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि कौन कौन से डिफरेंट स्पेशल नीड्स है लोगों की, राइट। जैसे ब्लाइंड है, डम्ब है, या फिर मे बी लाइक सिंपल सी चीज है जिसको कि दिखता है बड़ा अच्छा से नहीं दिखता है, राइट। तो किसी की हो सकता है कि मोटर स्किल्स प्रॉब्लम हो। सो बट हाँ, हर चीज तो हम डिजिटली सॉल्व नहीं कर सकते, बट till what level can we solve that problem? That is what we'll have to first analyze by doing the comparative research, or basically doing the secondary research, right? And yeah, उसके बाद we'll have to then come up with like, okay, so क्या कर सकते हैं, and then we'll talk to some people, we'll, or maybe like अगर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं तो we'll do then extensive research, secondary research, फिर deep research करनी पड़ेगी, right? फिर कंप्यूटर्स अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा कोशिश भी करेंगे कि जो इस एरिया में काम कर रहे हैं उनसे बात करें। ओके, बट सर इसका सेगमेंटेशन भी अलग अलग होगा ना, कि मैंने तो 3 सेगमेंट बोला आपका, जो देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है, बट अलग है जो पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंक है। बट उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इनके सब, जिसको तीनों ही नहीं आता है, मतलब बोलना या उठ भी नहीं सकता है, इन काइंड ऑफ दे हैव कि दे वांट टू लिव देयर लाइफ,
तो दे वांट टू सी कि हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, और वो पैरालिसिस है, बेड में सोया हुआ है, बट इन केस ऑफ ये सब फिर ये कैसे करके सॉल्व करें? Okay, so in that case, what we'll do is, I mean, we'll first सबसे पहले तो हम लिस्ट डाउन करेंगे कि लाइक कौन कौन से डिफरेंट स्पेशल नीड्स है यूजर्स की, और उसके बेसिस में विल देन फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा डिजिटली हम इन 4 चीज़ों को ही सॉल्व कर सकते हैं, हम बाकी 2 चीज़ों को नहीं कर सकते. So we'll have to be very clear about like what we can do digitally and what we cannot, and then only focus on what we can do digitally rather than like solving all the problem. Okay? बट साइड बाय साइड हमारा कस्टमर जो सेगमेंटेशन है उसको भी डिफाइन करना होगा ना, कि हम लोग तो एक मतलब पूरा एक ही डिवाइस के अंदर पूरा सारा चीज तो नहीं कर सकते, मतलब हाँ. जैसे मैंने उसका बताया था ना, वो जैसे मेगा के लिए बताया था किड्स ट्रैकिंग सॉल्यूशन फॉर स्कूल, तो आपको भी वही करना पड़ेगा कि कौन यूज कर रहा है. हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर के साथ में मे बी किसी मेडिकल कंपनी के साथ में लिंक कर दो अपना प्रोडक्ट, राइट, और बोलो कि अच्छा जो भी स्पेशल नीड्स वाले हैं वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और उसने उनको जो डेली जो भी टास्क करने हैं, राइट, तो वो उसको हेल्प करेगा उसमें, मे बी लाइक दैट like one way. So yes, we'll have to figure out what that is. So that's why it's kind of Mac system कि Mac स्पेशली ना डिजाइनर और जो डेवलपर है ये सब यूज करता है, बट गेमिंग वाले Mac यूज नहीं करेगा, दे यूज द विंडोज वाला हाइव कॉन्फ़िगरेशन. तो यही चीज है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो छोड़ दो कौन टारगेट यूजर्स है, किस ग्रुप को हम टारगेट करेंगे, पहले तो ये फिगर आउट करो क्या नीड्स है, राइट. जब वो समझ में पूरा आ गया, उसके बाद में विल फिगर आउट कि किसको ज्यादा नीड है इसकी, राइट, किसको हम ज्यादा किसकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, एंड देन विल ट्राई एंड फोकस इन दैट डायरेक्शन एंड देन क्रिएट द प्रोडक्ट. कैन यू गिव वन एग्जांपल, मतलब एक थोड़ा समझने के लिए. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि स्पेशल नीड्स तो बहुत सारे हैं, कि घर में भी स्पेशल नीड्स है, स्कूल में भी स्पेशल नीड्स है, राइट, हर जगह पे है. तो हो सकता है कि मैं ये जो प्रोडक्ट है स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए बनाऊं, मे बी लाइक पढ़ाई के लिए बनाऊं और स्कूल्स, राइट, उसमें फिर एक्स्ट्रा कुछ दे दूं कि हाँ मतलब जो घर पे हैं तो अभी इसको यूज करके अपना जो डेली काम करना है वो कर लें. दैट्स वन थिंग. और मे बी यू कैन, जैसे मैंने बोला कि जैसे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं वो डॉक्टर को विजिट करते हैं हमेशा, राइट, डॉक्टर के साथ उनका कोई डॉक्टर होता है हमेशा, राइट, तो उस डॉक्टर के साथ में आपके प्रोडक्ट की ऑफरिंग शिप हो जाए. समझ, ठीक है. बट हाँ अभी रिसर्च करो इसको. आई विल ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग गुड रेफरेंसेस. ओके, कि जो क्लासरूम है ना उसमें एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा, ये भी एक एक्सेल बना दूंगा, ठीक है, और एक्सेल में ये जैसे जितने भी हमारे सब लोग आप लोग हो ना, सब एक एक शीट बना दूंगा अलग अलग, कि ड्रोन के लिए ये रेफरेंस आर्टिकल्स है या वीडियोस है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो एक डॉक्यूमेंट में सब डाल दूंगा अलग अलग शीट बना के. नाइस. उसको रिफर करके फिर आई मीन आप इवॉल्व करते रहो अपना प्रोडक्ट को. एंड आई वांट यू टू गेट लॉस्ट व्हेन डूइंग दिस. ओके, मतलब आप एक लेवल ऐसा आना चाहिए कि आपको समझ ना आए कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, एंड दैट इज द स्टेज जब आपको फिर बैकवर्ड आना पड़ेगा कि अच्छा बहुत हो गया, अब रुकना है मुझे. यू नीड टू नो लाइक व्हेन टू स्टॉप. इन डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है, राइट सर, कि कब रुकना है, क्योंकि हम लोग ऐसा डिजाइन हमेशा ये चाहते हैं कि और अच्छा कर ले और अच्छा कर ले और अच्छा कर ले, इन द सेंस कि वो अपर लिमिट तो बने नहीं है ना. सो आई थिंक वी आर गुड, राइट. तो अभी आप लोगों को जितनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, राइट, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आई, बट बाकी लोगों को भी समझ में आई ना कि बाकी सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि अभी सीखने के लिए तो आप एक पे फोकस कर रहे हो, बट लेटर ऑन आई मीन व्हेन वर्किंग ऑन in job or like somewhere there, I mean like you'll have to work on different problems, so you should know like how to take a basic concept and then evolve it into a product. So process की understanding you should have, है ना, वो process समझ में आना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, I hope this was helpful, this session. Yes sir, very insightful. Yes sir. Yes. Good.